students, in today's lecture we will discuss how to factorize polynomials. Let's see it with example. Examine whether x plus 2 is a factor of this polynomial and this polynomial gx. ठीक, अब हम ये पॉइंट हम पहले भी लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं. If x plus 2 is a factor of this one, then when we divide this polynomial by x plus 1, we will get remainder equal to 0. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने से तो हम बोलेंगे फैक्टर है, अदरवाइज वी विल से इट्स नॉट ए फैक्टर. ओके, अब if we divide this by x plus 2, then we will say that yes, x plus 2 is a factor. यानी कि कब फैक्टर होगा? जब ये remainder, when we divide this one by x plus 2 and remainder comes 0. Now let's check whether what is the remainder when we divide this by x plus 2. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि हम इसके x plus 2 की 0 लेते हैं. What is the 0 of x plus 2? x plus 2 की 0 क्या होगी? -2. अगर -2 यहाँ पुट करने से px की वैल्यू -2 पे अगर 0 आती है, then we will say that px is a factor of x plus 2, otherwise we will say it's not a factor. Same case with the gx we can check. Okay, now px is x cube plus में 3x square plus में 5x plus में 6 and gx is equal to 2x plus में 4. 2x plus 4. Now examine whether x plus 2 is a factor of this one. X plus 2 is a factor of this one. अब x plus 2 is a factor of this one. What is the 0 of x plus 2? 0 of x plus 2. 0 of x plus 2 is, put x plus 2 is equal to 0 and x is equal to -2. So -2 is the 0 of x plus 2. The 0 of x plus 2 is -2. Now we have to check whether this polynomial is a factor of x plus 2 is a factor of this polynomial. तो क्या करें? We will find the remainder when we divide by x plus 2. Now 0 is -2. Put the value of this polynomial at -2. p -2 -2 to the power 3 plus में 3 into -2 का स्क्वायर plus 5 into -2 plus में 6. कितना हो गया? -2 का क्यूब. -2 का क्यूब कितना हो गया? -8. -2 का स्क्वायर कितना? 4. 4 3 जा 12. 5 into -2 -10 प्लस में 6. अब -8 प्लस का 10 -18 और 12 प्लस 6 18. This is equal to 0. Means when we divide this by x plus 2, remainder comes 0. सिंपल देखिए आप, अगर मान लो 18 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, रिमाइंडर इज 0. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है then you say that 3 is a factor of 18. So similarly, when we are dividing this polynomial by x plus 2 and remainder comes 0, it means x plus 2 is a factor of px. Therefore x plus 2 is a factor of px. ठीक है? Now we have to check whether gx has the factor x plus 2. So same way we will put the 0 of x plus 2 in place of x. g minus 2 2 into -2 plus में 4, that is equal to 2 into -2 कितना हो गया? -4 plus में 4. This is equal to 0. Remainder is 0 in this case also. Therefore x plus 2 is a factor of gx. ठीक है भाई? जब हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है, then we will say that yes, that polynomial is a factor of another polynomial. Is it clear? Now अब इसी से रिलेटेड इनका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं.
इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of px. x minus 1 is a factor of px का मीनिंग क्या है? अगर हम x minus 1 की 0 को इसमें पुट कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0, because it is given that x minus 1 is a factor of this one. तो इसमें क्या लेंगे? 0 of x minus 1 is, ये x minus 1 की 0 क्या होगी? इसको 0 पे इक्वल पुट करो, minus 1 को उधर ले जाओ तो वो क्या होगा? 1. 0 of x minus 1 is 1. Now x minus 1 is a factor of px. x minus 1 px का फैक्टर है, therefore इसकी 0 क्या है? 1. therefore p1 will be equal to 0. p1 will be equal to 0. तो पुट कीजिए 4 into 1 का क्यूब प्लस में 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस में k, दिस इज इक्वल टू 0. अब 4 into 1 का क्यूब कितना है? 4 प्लस में 3 into 1 का स्क्वायर 3 माइनस 4 प्लस में k, दिस इज इक्वल टू 0. प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए, टेक 3 टू अदर साइड, k इज इक्वल टू माइनस 3. k इज इक्वल टू माइनस 3. दिस इज आवर आंसर. इज इट क्लियर? लेट्स सी another example. Factorize y square minus 5y plus 6 by using factor theorem. factor theorem से हमें इसको factorize करना है. अब ये देखिए, ये क्या है? quadratic polynomial. quadratic polynomial, इसकी कितनी zeros होंगी? there will be 2 zeros. कितनी? y square है तो quadratic polynomial में number of zeros will be 2. अब number of zeros will be 2. कैसे हम इसको factorize करेंगे? तो इसमें देखिए भाई, constant term क्या है? plus 6. first of all we will find the factors of constant term. तो factors of solution, factors of 6 are 6 के क्या क्या किस किस से डिवाइड हो सकता है? प्लस 1 से हो सकता है, माइनस 1 से, प्लस 2 से, माइनस 2 से, प्लस 3 से, माइनस 3 से एंड प्लस माइनस 6 से. ये फैक्टर्स हो गए. अब यहाँ पे इनमें पुट करके देखिए कि किस क्या रखने से इसकी वैल्यू 0 आती है. तो py क्या है? y स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 6. ठीक है. नाउ लेट्स पुट 1. अब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू पुट करके देखनी, सभी चेक करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हम एक आइडिया देख लेते हैं. 1 पुट करते हैं. 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 और ये 6 और 1 7 और ये माइनस 5 0 नहीं आता. माइनस 1 पुट करके देखिए, माइनस 1 से माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 into माइनस 5 और ये 6, ये भी 0 नहीं होगा. लेट्स ट्राई फॉर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, 2 into माइनस 5 माइनस 10 माइनस 0. ओके. तो इसमें पुट करके देखिए वे, इनमें से p2 का स्क्वायर माइनस 5 into 2 प्लस में 6, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस में 10 और प्लस का 6, कितना? 10 minus 10, that is equal to 0. It means 2 is the 0 of this polynomial. 2 इस polynomial की 0 है. एक 0 और फाइंड आउट कर लेते हैं. इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? 2. एक 0 फाइंड आउट करते, माइनस 2 से ट्राई कीजिए, माइनस 2 से ये सारे प्लस के हो जाएंगे, नई बात बनेगी. तो फिर 3 से देखते हैं. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15, 3 into माइनस 5 माइनस 15. यस, 3 से आ p3 3 का स्क्वायर माइनस 5 into 3 प्लस में 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस में 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 0. ओके. तो क्या आ गया भाई? 2 and 3 are zeros of py. py की जीरोस कौन सी होगी? 2 and 3. और 2 किस लीनियर पॉलिनोमियल की 0 है? 2 किस लीनियर पॉलिनोमियल की 0? पुट x इज इक्वल टू 2, तो ब्रिंग 2 ऑन दिस साइड, माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 2 की 0 है भाई. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? अगर 2
इसकी 0 है तो हम ये बोलेंगे, और 2 किस लीनियर पॉलिनोमियल की भी 0 है, x माइनस 2 y माइनस x माइनस 2। हम यहाँ y वेरिएबल ले रहे हैं तो y ले लीजिए आप। तो क्या कहेंगे, y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन, y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। सिमिलरली 3 इज द 0 ऑफ py, और किस लीनियर पॉलिनोमियल की 0 है, ये 3, तो y माइनस 3। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर y माइनस 2 and y minus 3 are factors of py, factors of py। y minus 2 और y minus 3 py के क्या होंगे, फैक्टर। therefore py is equal to y square minus 5y plus में 6 that is equal to y minus 2 and y minus, ये इसका फैक्टर है। इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। इसको हम एक दूसरे मेथड से और फैक्टराइज कर लेते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। किससे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जब आपको कोई पर्टिकुलर ना बोल रखा हो कि फैक्टराइज इट बाय फैक्टर थ्योरम, और यानी यू आर जस्ट गिवन दैट फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो py क्या है भाई, py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 6। अब मुझे ये बताइए जर्नल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, y में है तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म a वाई स्क्वायर प्लस by प्लस में c, ये होती। अब हमें जो मिडिल टर्म कितनी है, b, मिडिल टर्म कितनी है b, और ये a इंटू c। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से a इंटू सी के इक्वल आ जाए, ऐड करने से मिडिल टर्म b के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है भाई, मिडिल टर्म इज -5, कितना, -5, और a इंटू सी, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू 6। नाउ वी नीड टू नंबर्स such that their product is 6 and when we add them we get -5। अब पहले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से +6 आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से +6 आ रहा है, तो वे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से प्लस का साइन कब आएगा, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। लेकिन उनको ऐड करने से आ रहा है -5। अब दो अगर प्लस के हैं उनको प्लस में करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, लेकिन ये तो साइन है माइनस का। इट मींस दोनों नंबर क्या है, माइनस के, दोनों नंबर क्या है, माइनस के। अब ये 6 है, मल्टीप्लाई करने से दो माइनस के नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा और ऐड करने से -5 आएगा। तो हम क्या लिखें, -3 इंटू -2, और क्या हो गया, -3 -2, -3 -2 -5, -3 इंटू -2 प्लस का 6। अब ये मिडिल टर्म कितनी है, -5y, मिडिल टर्म कितनी है, -5y, तो इसको -5y -3y -2y में स्प्लिट करिए, y स्क्वायर -2y और माइनस का 3y प्लस में 6। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम इफ यू इंटरचेंज, इफ यू राइट -3 फर्स्ट एंड आफ्टर दैट -2। ठीक है, -3y को पहले लिखे, -2y को बाद में लिखे, जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब इसमें हमें देखना है कि भाई इन दोनों में और इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, y स्क्वायर -2y में y कॉमन है, क्या बच गया, y ले लिया तो y, माइनस इसमें से y कॉमन ले लिया तो 2। अब इसमें क्या कॉमन ले लिया, -3, तो क्या आ गया y -2। इसमें क्या कॉमन आ गया, y -2, क्या हो गया इसमें कॉमन, y -2, y -3, फैक्टराइज हो गया y -2 y -3। ठीक है, जब तक आपको क्लियर कट ना बोला जाए कि फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय फैक्टर थ्योरम, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.4, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज x + 1 इज द फैक्टर। x + 1 इनमें से किसका फैक्टर है, हमें ये डिटरमाइन करना है। अब x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसकी 0, x + 1 की 0 क्या होगी भाई, -1।
अगर इस पॉलिनोमियल की -1 से जो वैल्यू है अगर वो 0 आ जाती है, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता देन वी विल से दैट इट्स नॉट द फैक्टर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द 0 ऑफ x plus 1। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन 0 ऑफ x plus 1 इज -1। x plus 1 की 0 क्या है? -1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए -1 पे, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, वरना नहीं। अब -1 पुट करेंगे, p -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस का -1 का क्यूब कितना हो गया? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1, और ये प्लस माइनस -1 प्लस का 1 कितना आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर is equal to 0, therefore x plus 1 is a factor of px। px का ये क्या है? फैक्टर है। now let's come to this one। अब इसमें भी क्या करेंगे? x plus 1 का ये फैक्टर है या नहीं, तो we will find the 0 of x plus 1, that is -1। -1 की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर 0 आ जाता तो फैक्टर है, अदरवाइज यू विल से नो। तो 0 of x plus 1 is -1, तो -1 की पावर 4 प्लस में -1 की पावर 3 प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और प्लस का 1। -1 की पावर 4 क्या है भाई? -1 की पावर 4 1, और -1 का क्यूब, -1 की पावर ऑड में तो साइन क्या रहेगा? माइनस का -1, और -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस इंटू -1 प्लस 1, ये 1 -1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, दिस इज 1। तो क्या है? दिस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं आया भाई, 0 नहीं आया तो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ gx। देयरफॉर x plus 1 is not a factor of gx, is not a factor of gx। ठीक है, नाउ कम टू दिस वन। तो इसकी 0 को इसमें पुट करके देखिए, 0 ऑफ x plus 1 is -1, तो f -1 का क्यूब माइनस इंटू -1 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में √2, और x की जगह कितना? -1 प्लस में √2। x की जगह जहाँ जहाँ था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब कितना आ गया? -1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस है तो -1, और यहाँ पे -1 इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस का हो गया +1, और +1 सीधा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या आ गया? 2 प्लस में √2, और ये प्लस का √2 कितना? -1 कितना हो गया? -2 प्लस में 2 प्लस में 2√2 कितना? √2 प्लस √2 2√2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2√2। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of fx। fx का ये फैक्टर नहीं है। Is it clear? Now let's move to the next question। Second question, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each case। Whether gx is a factor of px using factor theorem, you have to tell whether this px is a factor of x plus 1। Clear? Now using factor theorem, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसका कांस्टेंट्स क्या है? इसके कांस्टेंट्स क्या है? px के कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है -1, और -1 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? +1 एंड -1। ठीक है, इन px कांस्टेंट क्या है? -1। इन px फैक्टर ऑफ -1 आर +-1 +1 भी हो सकता है और -1, ये सॉरी +1
और -1 ये दोनों फैक्टर। अब इनमें से किस वैल्यू के लिए ये देखिए, इनमें से किस वैल्यू के लिए ये 0 आता है, तो सिंपल हम 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट करने पे ये क्या होगा, 1 पुट करेंगे तो 1 × 2 2 + 1 और ये -2 -1 0 हो गया। तो माइनस ये 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, 1 फैक्टर है तो x 1 0 है तो x - 1 इज द 0 ऑफ दिस वन। और फिर -1 से पुट करते हैं, -1 से पुट करेंगे उससे भी ये 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए भाई P1 क्या है भाई, 2 × 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर -2 × 1 -1 कितना 2 प्लस में 1 -2 -1 कैंसिल हो गया भाई, दिस इज इक्वल टू 0। फिर -1 में पुट कर लेते हैं, P -1 पुट कीजिए, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर -2 × -1 प्लस माइनस में 1। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 × 2 2 और -1 का ये सॉरी क्यूब था भाई, दिस इज क्यूब, -1 का क्यूब कितना माइनस, तो ये -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 तो +1 और ये माइनस माइनस +2 और ये -1 तो -2 कट गया भाई, क्या आ गया 0। अब 1 and -1 आर जीरोस ऑफ px, 1 and -1 px की जीरोस है। अब 1 किस लीनियर पॉलिनोमियल की 0 है, x - 1 की, और -1 किसकी 0 है, पुट x = -1 को इधर लाइए, x + 1 = 0, यानी कि -1 किसकी 0 है, x + 1 की। तो क्या लिखेंगे, x - 1, therefore x - 1 and x + 1 are factors of px। px के क्या है भाई, x - 1 और x + 1 दोनों फैक्टर हैं, तो gx क्या था, x + 1, तो hence x + 1 is a factor of px। ठीक है, x1 + 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर देखेंगे कि उन फैक्टर्स में ये gx आता है या नहीं आता। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, क्या है 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 1 आर, कांस्टेंट टर्म भी लेनी है हमें, 1 आर +1 एंड -1, +1 एंड -1। इनकी वैल्यू देखिए, px की 1 एंड -1 देखिए, P1 क्या है, 1 का क्यूब प्लस में 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस में 1 कितना, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 1 कितना आ गया, 1 + 3 4 4 and 4 8, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है -1 की, किसकी आती है, -1, तो P -1 पुट कीजिए, -1 का क्यूब प्लस में 3 × -1 का स्क्वायर प्लस में 3 × -1 प्लस में 1, -1 का क्यूब क्या आ गया, -1, और ये क्या है, -1 का स्क्वायर 1 × 3 3 और ये -3 प्लस का 1 कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, -1 इज 0 ऑफ px, अब -1 0 ऑफ px, और -1 किस लीनियर पॉलिनोमियल का की 0 है, x + 1, therefore x + 1 is a factor of px, x + 1 is a factor of px। is it clear? now let's see the third part also। अब थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 आर +-1 +-2 +-3 +-6। ये इन +1 से -1 से +2 से -2 से +3 से -3 से +6 से -6 से ये डिवाइड होता है, तो हम ये कह देंगे दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। अब हमें क्या चेक करना है अल्टीमेटली, देखिए बहुत सारे आ गए इसमें, पहले सिर्फ 2 ही थे, हमने दोनों चेक करके देख लिए थे, लेकिन दोनों भी चेक करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखिए भाई, gx x - 3
जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जीरो क्या होगी, पुट दिस इक्वल टू जीरो, -3 इधर जाके 3 हो जाएगा, तो 3 इज द जीरो ऑफ दिस, 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो और इस पॉलिनोमियल का 6, ये इसमें कांस्टेंट 6 है, 6 का एक फैक्टर है +3, तो हमें तो यही बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं, तो हम सिर्फ इसी पे चेक कर लेंगे, किस पे, 3 पे। तो हम क्या चेक करें, P3 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। P3 पे क्या रहता है, 3 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6, 3 का क्यूब कितना है 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये माइनस का 9 4 जा 36 प्लस का 3 प्लस का 9, 27 प्लस 3 30, और ये सॉरी ये 6 था, 6, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 और -36, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ, अब 3 पुट किया तो ये 0 आ गया, इट मींस 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और 3 किस लीनियर पॉलिनोमियल की 0 है, x - 3, तो क्या कह देंगे, x - 3 इज द फैक्टर। अब देखिए 3 इज जीरो ऑफ px, px की 3 0 है, 3 0 है तो 3 किस लीनियर पॉलिनोमियल की 0 है, x - 3, तो x - 3, therefore x - 3 is a factor of px, px का x - 3 क्या है, फैक्टर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, let's see the third question. Find the value of k if x - 1 is a factor of px. x - 1 is a factor of px. It is given. यानी कि x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन वी डिवाइड बाय x - 1, तो रिमाइंडर थ्योरम से व्हाट इज द जीरो ऑफ x - 1, तो 1 की वैल्यू निकालिए, और 1 की ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x - 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो हम इसकी 0 लिखते हैं, जीरो ऑफ x - 1 इज 1, therefore remainder is equal to, therefore p1 क्या होगा, 0, because अब इसमें देखिए लिख देंगे आप, x - 1 is a factor of px, ठीक है भाई, ये गिवन है, x - 1 is a factor of px। now 0 of x - 1 is 1, तो ये फैक्टर है, तो जो ये 1 से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल, therefore p1 that is 2 into 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस में √2, this is equal to 0, because it is already given x - 1 is a factor of px। now 1 का स्क्वायर कितना है, 1 into 2 प्लस में k प्लस में √2, this is equal to 0, तो k is equal to, take these two on the other side, ये -2 और -2, तो k is equal to this, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ऐसा हम स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल कर चुके थे। नाउ आई हैव टेकन सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट यू कैन डू ऑन योर ओन, आई हैव आल्सो नॉट टेकन थर्ड पार्ट, यू कैन सॉल्व दैट। लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। नाउ you have to find the value of k if x - 1 is a factor of this one, ठीक है। लिखेंगे x - 1 is a factor of px, x - 1 px का क्या है, फैक्टर, x - 1 px का फैक्टर है, तो जो रिमाइंडर होगा x - 1 से डिवाइड करने से जो आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0, तो इसकी 0 देखिए भाई, 0 ऑफ x - 1 is 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 पे 0, p1 दैट इज k into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस में k, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। k into 1 का स्क्वायर 1 into k minus 3 प्लस में k, दिस इज इक्वल टू 0, k प्लस k क्या होगा, 2k इज इक्वल टू, सॉरी -3 उधर जाके 3, तो k इज इक्वल टू 3/2, दिस इज आवर आंसर, ठीक है भाई। अब जैसे ही कोई हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद मैं 1-2 सेकंड का टाइम आपको इसलिए देता हूं so that you can take the screenshot of this answer।
we have to factorize these quadratic polynomial. We have to factorize. अब इसमें कोई नहीं दे रखा आपको फैक्टर थ्योरम से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है, ये आपकी मर्जी है. So let's factorize them by splitting the middle term. Splitting the middle term. अब splitting the middle term कितनी है? -7x. -7x. हम इसका सिर्फ कोफिशिएंट ले लेते हैं, कितना? -7. और a into c 12 into 1 कितना हो गया? 12. अब इस तरह से इनके हमें दो टुकड़े बनाने हैं, so that their product is 12 and their addition is their sum is -7. अगर आपने ये पेयर प्रॉपर बना लिया तो your question is will be 100% right. लेकिन अगर ये पेयर प्रॉपर नहीं बना तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है. अब पेयर कैसे बनाने थे? हमने मिडिल टर्म कितनी है? -7x. तो सिर्फ कोफिशिएंट ले लिया -7 और a into c 12 into 1 12. अब we need two numbers whose product is 12. या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे. लेकिन अगर प्लस के दोनों होंगे तो जब उनको ऐड करेंगे तो प्लस का आएगा, लेकिन ये नंबर किसका है? माइनस का, यानी कि दोनों माइनस के. तो कोई देखिए पेयर बनाने से दो नंबरों का प्रोडक्ट ये हो और उनका एडिशन -7 तो -4 into -3 -4 into -3 -4 और -3 -7 माइनस प्लस 4 3 12. प्रॉपर बन गए भाई. अगर ये पेयर सही बन गए तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा. तो आपको इस पे पूरा फोकस करना है और ये आपका रफ वर्क होता है, लेकिन एक लाइन लगा के आप साइड में नोटबुक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में आप करेंगे. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 12x स्क्वायर. ये -7x है. -7 क्या है? -4 -3. तो -7x को कैसे स्प्लिट करेंगे? क्वेश्चन हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना -7x को -4x -3x. क्या लिखेंगे? -4x -3x प्लस का 1. अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं भाई हम -3x को पहले लिख सकते हैं, -4x को बाद में लिख सकते हैं, आंसर विल बी सेम. अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 12 और 4 में से 4, x स्क्वायर और x में से x. तो इसमें से 4x कॉमन आ गया, 12 में से 4 कॉमन तो 3, x स्क्वायर में से x आ गया तो x -4x कॉमन आ गया तो 1. अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 3x प्लस का 3x है, ये -3x है, तो -1 कॉमन ले लो. इनमें से क्या कॉमन ले लो? लास्ट वाले दोनों टर्म्स में से -1. तो -1 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? ये 3x. -1 कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस. अब इसमें दो टर्म आ गई, इनमें कॉमन क्या है? 3x -1 3x -1 3x -1. और इसमें से 3x -1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 4x -1. This is how we factorize it. Is it clear? ये आ गया फर्स्ट. अब इसको फैक्टराइज करते हैं. अब फैक्टराइज करेंगे. मिडिल टर्म कितनी है भाई? ये रफ वर्क है अपना. मिडिल टर्म कितनी है? -7x. इसका कोफिशिएंट सॉरी प्लस का 7x, तो क्या आ गया? 7. ठीक है भाई. अब a into c 2 into 3 कितना है? 6. अब देखिए हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड करें तो 7. तो क्या हो गए? 6 into 1 6 into 1 6 और 6 प्लस में 1 7. अगर ये प्रॉपर बन गया, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए दोनों कंडीशन. तो अपना स्प्लिट करो 7x को 6x प्लस x. 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस x प्लस में 3. ठीक है, 7x को स्प्लिट कर दिया, 6x प्लस x कितना होता है? 7x. ठीक है. अब इसमें इन दोनों पहली दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया? 2 और 6 में 2, x स्क्वायर और x में x. तो 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया? x प्लस में 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3. अब इसमें से +1 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? x प्लस में 3. ठीक है. चलो इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है? x प्लस 1. दिस इज द फैक्टराइजेशन. इज इट क्लियर? चलो इसको फटाफट हम देख लेते हैं. मिडिल टर्म कितनी है भाई? x का कोएफिशिएंट -1. a into c 3 into -4 -12. अब हमें दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, ऐड करें तो -1. मल्टीप्लाई करने से माइनस का आ रहा है, इट मींस एक माइनस का और एक प्लस का.
एक माइनस का और एक प्लस का जब उनको ऐड कर रहे हैं तो माइनस का राइट मीन्स बड़ा नंबर क्या है, माइनस का, और कितना बड़ा, 1। तो क्या लेंगे इसको, -4 इंटू 3, -4 प्लस में 3, -4 प्लस 3 -1, -4 इंटू 3 -12। ठीक है, कितना आ गया भाई, 3x स्क्वायर -4x प्लस में 3x और ये माइनस का 4। क्या कॉमन आ गया इसमें से, 3x स्क्वायर -4x में से x कॉमन आ गया, कितना, 3x -4। इसमें क्या कॉमन आ गया, प्लस का 1, कितना, 3x -4। और इसमें से क्या कॉमन आ गया, 3x -4, कितना बच गया, x प्लस में 1। दिस इज द factorization. Is it clear? This was all about this. One question is left. We will take that question in next lecture.